کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو قطعاً بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت ہی قریب تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ نمرود نے کہا عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے 1,00,000 سے زائد بچے قتل کروا دیے گئے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑوں کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئی۔ پھر دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خداوند تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی۔ آپ علیہ السلام 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنے کا سلیقہ سکھاتی اور اللہ کے پیغمبروں کے قصے سناتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہے وہ خود پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بتایا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کے والد تارخ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر احادیث میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت کا چچا تھا اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور تارخ کی وفات کے بعد آپ کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی لحاظ سے آپ کو اس کا باپ کہا گیا ہے
आज़र पत्थर, लकड़ी और मट्टी के बुत बनाता, उनको खुद पूछता और लोगों के हाथों में फरोख्त किया करता था। इसी तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आज़र के बेटे भी बुत फरोशी किया करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर में गए और अपने चचा के पास पहुंचे तो आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गए, जिससे वो मट्टी, कीचड़ और कूड़े करकट में आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगो आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान है और कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन आमेज था। फिर नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि आज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मट्टी के बुत बनाते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही आपको नफा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज़र ने चौंक कर पूछा कि क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? आइंदा इस तरह की बात जुबान पर न लाना वरना तुम्हें सजा होगी। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और कहा, परस्तिश और सजदे के लायक न नमरूद है और न ये बुत है। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है और वही उसका मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और पैगाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। लोग इनकी बात को गौर से सुनने लगे। जब इनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहीम है जो आज़र के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश कर दिया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें नमरूद का पैगाम पहुंचाया। हजरत इब्राहीम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा खुदा वो है जो लोगों की जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म था ही नहीं। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने पर तुम्हें क्या शक है? मैं भी तो जब चाहूँ जिसे चाहूँ जिंदगी बख्श दूं और जिसको चाहूँ मौत दे दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद से सवाल का कोई जवाब न बन पड़ा और वो शर्मिंदा हो गया। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इब्राहीम को अपने साथ ले जाऊं क्योंकि ये अभी ना समझ है। आज़र बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर जाने की इजाजत दे दें, मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इब्राहीम को मुआफ करता हूँ, लेकिन अगर आइंदा इसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहीम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से बाज न आए और एक दिन उन्होंने आज़र से कहा, ये बुत क्या है जिनको आप खुद बनाते हैं, खुद पूछते हैं और खुद ही इनको खुदा मानते हैं? आज़र ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहीम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी शोखी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले। चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन बुतों या नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग कोई इंतजाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक एक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और इस दिन वो कुछ खुसूसी मरासिम अंजाम दिया करते थे। चुनाचे वो सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ ईदगाह जाने से इनकार किया और उज़र पेश किया कि वो बीमार है। वो लोग आपको छोड़कर चले गए। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है। चूंकि सब लोग खाना लाए थे इसलिए ये खाना बहुत ज्यादा था, लेकिन इन झूठे माबूदों ने उसे खाना तो दरकनार उसे छुआ तक नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते?
फिर पूरी कुव्वत से दाएं हाथ से कुल्हाड़ा मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि सब उसी की तरफ रुजू करें। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। मुशरिकीन मेले से लौटे तो देखा कि उनके सारे माबूद औंधे मुंह टूटे फूटे पड़े हैं। इनके तमाम माबूदों को तोड़ दिया गया था। वो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया, ये किसने किया। कहने लगे कि ये काम किसी जालिम का है, उसने हमारे माबूदों की तौहीन की है। उस वक्त उन लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो कलाम सुना था। उन्हें उनका ख्याल आ गया। वो कहने लगे, वो नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, उसे हमने अपने बुतों की मजम्मत करते हुए सुना है। अल्लाह की कुदरत के इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो खुद ब खुद पूरा हो रहा था। कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसे बुलाओ और फिर उसे सजा दो। चुनाचे तमाम अहले बातिल छोटे बड़े सब जमा हो गए। कार्रवाई शुरू हो गई। कहने लगे, इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ लग़्व हरकत तुमने की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उनके टुकड़े किसने उड़ाए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि हमने बड़ी गलती की, अपने माबूदों के पास किसी को हिफाजत के लिए नहीं छोड़ा। किस कदर वाज़े बात महसूस करके भी वो जालिम ईमान न लाए, बल्कि शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये तो बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब फिर तुम अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर भी और इन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। फिर उनसे फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो, यानी इनका तो ये हाल है कि तुमने खुद इनको अपने हाथों से तराशा और इनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। फिर सोचने लगे कि नौजवान सच कहता है। सचमुच मट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है, लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा असर हुआ। वो बोला, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुम ही ने किया है, और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा पूरा बुतखाना ही गिरा दोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो उस शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा यह है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरी बात को मेरा अल्लाह जानता है। जज ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल दरामद के लिए फौरी तैयारियां शुरू कर दी। उसने उस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान करवा दिया कि हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। उधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ये ऐलान किया कि जो लोग हमारी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे तो उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका ताल लगा दिया। उसको आग लगा दी गई। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहां आग जल रही थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंचे मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ फासले पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वजीर और मुशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर एक फसल के फासले तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चनाचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मसला दरपेश हुआ कि अब इब्राहीम को इस आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने लोगों के दिमाग में मंजनीक का तस्वुर डाला
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मंजनीक दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कूफे में कोहिसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो करिया कंतीनिया में थी। उस मंजनीक को शैतान ने बनाया था। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में डाला गया। उस वक्त आसमान और जमीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर शय ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश जाहिर की। जमीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहीम के तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है, क्या तू राजी है कि लोग इसे जला दें? फरिश्तों ने कहा, तेरे खलील इब्राहीम को लोग जलाते हैं। हक ताला ने फरमाया, अगर मुझसे वो मदद तलब करेगा तो यकीनन कबूल करूंगा। मोहतरम सामाईन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम से दुआ की, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम से हवा में मुलाकात की जब वो मंजनीक से जुदा हो चुके थे और पूछा, ए इब्राहीम, कोई हाजत मुझसे है? आपने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, आलमों के परवरदिगार से मेरी हाजत जरूर है। फिर खुदा ने आग को वही की, सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हुए। उनके चारों तरफ गुलो लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब आग जल रही थी तो छिपकली आग को फूंक मारती और मेंढक उस पर पानी लाकर डालता था ताकि उसको बुझा दे। जब खुदा ने आग पर वही की कि सर्द हो जा तो 3 रोज तक दुनिया की तमाम आग में गर्मी बाकी नहीं रही थी। और यूं अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, ताजुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पर चलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तमाम मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत को तो आंखों से देख ही चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार न हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। उसने फौरन लोगों को लालच देकर और कुछ डरा धमका कर बहकाया और इसके बाद हुक्म दिया कि इन्हें शहर बदर कर दिया जाए ताकि कोई शख्स इनका पैरोकार न बने और इनका दीन इख्तियार न कर सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी नमरूदियों के साथ उनके शहर में रहने पर खुश न थे, इसीलिए वो शहर छोड़ने पर आमादा हो गए। चुनाचे उन्होंने अपनी बकरियां इकट्ठी की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। चूँकि आपके साथ बहुत सी भेड़, बकरियां और दूसरा सामान भी था, इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया कि ये सारा बाक़े सरकार जब्त कर लिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम मेरी भेड़, बकरियां और मेरा मालो मता लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन में अपनी जितनी उम्र सर्फ करके ये भेड़ बकरियां जमा की हैं, तुम मेरी वो उम्र मुझे लौटा दो और मेरा माल जब्त कर लो। जब बात बढ़ गई तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुंसिफ के पास पहुंचा। उसने फरीकैन के बयानात सुनने के बाद फैसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दे दिया। तब आप अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के हमरा बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मौरिकीन और बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी, मगर उसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में खड़े हुए, यहाँ तक कि हक ताला ने इतने मच्छरों को भेजा